What's up guys, so here's back your friend Gyani and today I'm here to share my story with all of you. So let me tell you how it started, and before moving forward in the video I would say I'm a JEE aspirant and I've been preparing for JEE for today. So let's start the video, let's begin. When I was in 11th, when I heard about the IITs and NITs for the first time, I never thought in my life it would become my life's ambition. After some time, I entered in 12th class and we had lot of fun during the boards. I finished my boards and I came back to my hometown, and now I had to decide what will be my next move for my further study. I went to my brother and told him, भैया will you do me a favor? And he said कि बोलो क्या हुआ? And वो कहते हैं कि whatever you want to do in your life, you can do everything. I'm always with you. I was glad to hear that. And after some time, समर वेकेशन चल रहे थे एंड एक दिन मैं ऐसे ही भैया के फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था एंड I got a message from my school group and 3 students from my school group got selected for JEE Advanced. I was shocked. I went to my brother and मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं एंड देन वो सो रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाद में बात करते हैं एंड मैं बाहर आ गया एंड आफ्टर इट्स आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल from unknown number and she said are you Vishnu? So I was like yes, so this is Vishnu. And she said beta you have been selected for your coaching program. So I was so happy. I went to my mother and I told her mama I got selected. So she was so happy, everyone was so happy. मैं शाम को पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे कोचिंग के लिए सिलेक्शन हो गया है, सो नाउ आई कैन डू प्रिपरेशन फॉर JEE. सो वो दिन आज भी तक मुझे याद है एंड आई वाज सो हैप्पी, एवरीवन वाज सो हैप्पी एंड I came here and then I come here for my preparation and still I remember my coaching's first day when I woke up in the early morning with my brother and I took a shower and मैं और मेरे भैया कोचिंग के लिए निकल गए. हमने एक ऑटो लिया एंड उसने हमें कोचिंग के सामने उतार दिया एंड फाइनली वी वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई कोचिंग एंड देन मेरे भैया मुझे बोलते हैं कि जा अंदर कोचिंग में, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना. आई एंटर्ड इन द क्लासरूम एंड आई सो अ क्राउड. आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट द ओनली पर्सन हु हैड कम हियर टू secure their seat to get admission into India's most valuable institutes. I was shocked and I took all classes and I came back to my room. मैंने भैया को सब कुछ बताया whatever happened to me in class. And then सब कुछ अच्छा चल रहा होता है and you know according to time backlogs and कहीं ना कहीं स्टडीज़ को लेकर मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी. I was so tired and I was so confused. So I decided to go back home and I called my father and I told him, Papa, I'm not even understanding what is going around me and please I want to come back. And my father told me, he said to me, कि what happened to you? And when you already knew that thing, you can't do that and you are not able to do this work, so why did you choose it? And that was time which I felt because every decision was mine. I decided I will touch my any length to achieve my goal. And then ये तो एक बाप का डांटना हो गया. After some time I gave my first attempt in 2024 and I didn't get a good score. So I called my father and मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसा अच्छा मार्क्स नहीं आया. So उसके बाद में उन्होंने कहा कि विष्णु बेटा you did a great job and even you did try your best. Don't worry and I know you will do it. You'll do it. So तुम you can try again if you want to do. So मैंने फिर डिसाइड किया and now I had to decide again what will be my next move. So I took a second drop for my JEE preparation. So ये आसान नहीं था बट मैंने लिया एंड मैंने वापस कंटिन्यू करी प्रिपरेशन एंड सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एंड फाइनली आई गिव माई फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट इन 2025. आई गोट अ गुड स्कोर. मैं कैम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो एक दिन मुझे मेरे दोस्त से पता चलता है कि मेरे 2 दोस्त दे आर
दे वर डिस्कसिंग अबाउट मी कि ये करेगा IIT करे, ये IIT का एग्ज़ाम देगा. So I had never thought and I had no idea they had this intention towards to me. So यार, I can do everything according to me. The greatest learning that I had from Kota, that was when I was feeling low, when I was crying, when I was alone, when I was making myself miserable. There was only guy who was always with me. Actually, that was only me. So I want to tell you one thing: be kind about yourself and don't forget to have a good time with yourself, because अपने हमारे बुरे समय में कोई अपने साथ नहीं होता. एंड सब कहीं ना कहीं हम खुद से ज़्यादा हम ही होते हैं उस बहुत ही उस टाइम में. एंड द वर्स्ट थिंग हैपन टू मी इन कोटा, that was I lost a diamond from my life. I lost a true friend from my life. And sometimes I feel, and according to time I'm feeling, कहीं ना कहीं actually I'm losing myself and I'm losing my existence. I don't know why I'm feeling like that, but it's not only happening to me. And I always used to think why it always happened to me. बट कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं लड़के फील कर सकते हैं, बिकॉज वही ऐसा फील करते हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग कि कहीं ना कहीं वो अकेले होते जा रहे हैं. सो दैट्स वाई एंड आई एम थिंकिंग, आई एम सो एक्साइटेड टू अनाउंस, यू ऑल will be glad to know I am making a documentary which is based on my own life, and it's going to be released on my birthday. So whatever happened to me in Kota, that was really amazing, and I also grateful for that. If I get a chance to stay here, so I would never want to stay here again. And one more thing, I personally believe in that how you learn from your own journey, your own mistakes, your own experiences. There is no greater thing than that. According to me, life is all about learnings. How you learn from yourself, how do you learn from your mistakes, and how do you learn from the others. So ये बहुत ही great thing है. So try to be, and I always try to be best version of myself. So यार, it's not a easy side, and it's easy to say I can do this, I can do that, but it's too hard to achieve something in your life. So dream big, चाहे पूरा हो या ना हो, and do your best and get your dreams. Thank you to you. One more thing, I've been so lucky from my childhood, because I got supporting, loving and caring parents, and love you mummy and papa for giving this opportunity. Thank you so much, and thank you, love you so much. मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से. Hey, hi. So due to some reasons I had to come from there, and कुछ कहना बाकी रह गया था. Actually I would like to share कुछ लाइन्स में शेयर करना चाहता था, which is सुशांत सिंह राजपूत की, actually which inspired to me to something. तो लाइन्स ऐसी है कि जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन लाइफ को कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं. और एक और डायलॉग उनका है कि 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा, ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं. सैलरी नहीं दे पाऊँगा लेकिन हिस्सेदारी ज़रूर मिलेगी. अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छूएंगे, वरना डूबेंगे. लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि उड़ने में मज़ा बहुत आएगा, एंड यही चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्पायर करती है. एंड वन मोर थिंग कि लाइफ बहुत ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एंड इसको कैसे हम जी सकते हैं. एंड आई फेल्ट दैट थिंग, क्योंकि जब हम अपने सपनों के लिए जीते हैं, हर एक दिन, हर एक सुबह शाम, हर एक दिन हमारा उसमें जाता है, तो उसका अलग ही सेटिस्फेक्शन और उसकी अलग ही खुशी है. चाहे कुछ रिजल्ट कुछ भी हो, बट अपने आप को उसमें झोंक देना एंड उस चीज़ को फील करना, इसका अलग ही लेवल है.
सो थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो किसी और के लिए नहीं है, ये एक्चुअली इस बैठे हुए सामने विष्णु के लिए है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू टाइम में कितना खुद को इम्प्रूव कर पाता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सो इसलिए इसके लिए ही है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। ओके, इंटरव्यू डन। तो क्या मैं एक गाना गाऊँ? दबे दबे पाँव से आए होले होले जिंदगी, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आसियाँ, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के रंगों से चल बनाए आसियाँ। और मैं अब कुछ चीज़ करने जा रहा हूँ शायद जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। आई थिंक मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज आई डोंट नो, बट करना पड़ेगा। एंड यू नो द जर्नी इज ओवर एंड द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज वेटिंग फॉर यू विष्णु, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। पूरा तो नहीं हटाऊँगा मैं अभी, बट यू नो आफ्टर एग्ज़ाम सब कुछ हो जाएगा, बट यू नो आई कैन फील दिस पेन। 2 साल मैंने इन्वेस्ट किए हैं इस पर, ये छोटी या इजी टास्क नहीं है। सो हमेशा अपने आसपास के लोगों में देखता हूँ, बिकॉज दे आर डूइंग द सेम थिंग एंड दे आर लिविंग द सेम लाइफ। दे डोंट इवन नो एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। तो इसलिए यू नो आस्क टू योरसेल्फ, खुद से पूछो क्या तुम जिंदा हो, आर यू अलाइव? एंड इसका जो मीनिंग है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। सो कंटिन्यू। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू समन है, कुछ है बातें करता ये बुद्धू समन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, चलने दे नजरों की मनमानियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियां। होश में रहना है क्यों, रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा। बचकानी हरकतें जो होती है होने दे, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सो बातें करता ये बुद्धू समन है। मौसम भी की है कुछ कोशिशें, होने लगी देखो ये बारिशें, सर पे चढ़ा है एक ऐसा असर, दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने, धुन कोई चल रही है कानों में धीमे से, रोशन है ज्यादा ये सुबह, हलचल जो हो रही है सीने में होने दे, खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा,
अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। Hi guys. Guys, I'm here. 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े। साथ दोगे? सैलरी कितनी मिलेगी? नहीं, एक्चुअली सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर करूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार।